Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is volume and surface area of solids. तो यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं जस्ट लाइक क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर. तो यहाँ पे वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और से इनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी देखेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फिगर दैट इज आर क्यूबॉइड. ओके, सो क्यूबॉइड में हमारे पास 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस होते हैं. अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड के पास देखते हैं 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं. इसकी वजह से हमें इस टाइप का एक क्यूबॉइड देखने के लिए मिलता है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूब. सो क्यूब ऑल्सो जस्ट लाइक क्यूबॉइड, बट इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है वो तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिससे क्या फॉर्म होता है, क्यूब. ठीक है, इसमें भी आपके पास सेम फेसेस होंगे, 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. Okay, now move to next part. Okay, next we are having, so now we are having volume of cuboid and cube. So यहाँ पर जो हमारे पास जो क्यूबॉइड होता है उसके सारे फेसेस सेम होते हैं एंड साइड सेम होती है. तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम निकालने के लिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ cuboid is length into breadth into height, and the volume of cube where length, breadth, heights are equal, so we are going to write a into a into a, that is a cube. Okay, so again here we are having diagonal of cube and cuboid. If we have to find out the diagonal, we use under root l square plus b square plus s square. In case of cube, we are having root 3 a square, or root 3a unit is a formula for diagonal. Okay, here we are having our exercise 18.1. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया एंड लेटर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. सो लेट्स पिक दिस वन. Okay, here we are having length, breadth and height. So we have to find out the lateral surface area, that is LSA, and the formula for LSA is 2L plus B into H. Okay, so here we are having 2, length is 6, breadth is 4 and height is 3. So we are having 2, 6 plus 4 is 10 into 3. So we are having 10 to the 20 into 3, that is 60 centimeter square. Okay, now we have to find out the total surface area, that is DSA, that is 2 bracket LB plus BH plus HL. Okay, so here we are having just like, that is 2. L length is I think 643. So we are having 6 into 4 plus 4 into 3 plus 3 into 6. Okay, so now we are going to solve them just like 6 for 24 plus 12 plus 18. So here we are having, it's like 2, this is 24, 20, 30, 40, 54. So here we have 4 to the 8 and 5 to the 10. So this is 108 centimeter square. Okay, so this is the answer. Next is, let's make question number. So here we are having the cost of painting the whole surface area of a cube, and this is 50 paise per centimeter square, and the cost is given. Okay, then we are having find the volume of the cube. So here we are in the surface area of cube and the rate of 15 paise per centimeter square. Okay, so here we are having cost of 1 centimeter square is 15 paise. Okay, then we are having cost of total surface area of cube is rupees 518 rupees and 40 paise. So we have to find out the total surface area of cube equals to
This is 518.40 divided by 15 पैसे. ये into 100 कर देंगे एंड इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा. ये 0 कैंसिल आउट. ओके, अब 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर. 3 1 जा 3, 21, 7 3 जा 21, then 3 2 जा 6 and 8 3 are 24. Then here we are having 5 and 0 is also there. चलिए 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, that is 5 3 is 15, 22, 5 4 is 20, then 5 5 is 25 and 6 5 is 30. So we are having total surface here, that is centimeter square. Okay, now we have to find out the side. So side or length of cube, same thing, side of cube equals to, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 6 एंड अंडर रूट. So we are having 3 4 5 6 divided by 6, 6 5 is 30, 7 6 is 42 and 36, 6 6 is 36. Okay, now इसको हम क्या करेंगे, so we are having 576 and स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई थिंक 25, 6 to 5 24, this is 24 centimeter. Okay, so now we are having a side of cube or length of cube is 24 centimeter, but we have to find out the volume. Now we have to use the formula for volume. So we are having volume of cube, that is side cube. So यहाँ पर देखिए, so side is we are having 24 into 24 into 24. तो चलिए 24 का क्यूब करते हैं. मैं एक मिनट फोन यूज कर लेता हूँ. That is 13824. This is centimeter cube. Okay, so this is the volume of cube. You get volume, you get side and you get total surface area. Okay, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर निकाला. ओके, यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन. ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. अ रेगुलर टैंक मेजर्स ऑफ 5 मीटर, 4.5 मीटर, 2.1 मीटर इज थिक इन द सेंटर ऑफ द फील्ड. तो हमने एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाया, जैसे उसमें से ऐसे खोद कर मिट्टी निकाली एंड उसको दूसरी जगह डाल दिया, जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. तो अब ऑब्वियस ज़्यादा मिट्टी डालते तो मिट्टी का लेवल बढ़ता चला जाता है, तो उसमें हाइट पूछी गई है ना. लेकिन यहाँ यहाँ से जो मिट्टी निकाली होगी वहाँ पर जो मिट्टी घेरी हुई है वो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम सेव होगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मच द लेवल ऑफ द फील्ड इज रेज्ड. सो यहाँ पर हम निकालने वाले हाइट ऑफ फील्ड. ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. So here we are having, this is volume of rectangular tank हो गया. Volume of rectangular tank हमें यहाँ पे given है, that is length into breadth into height. So length is this, breadth is this and height is this. Okay, then we are having area of another field. So we are having 13.5 into 2.5. Okay, so this is our height.
So now we are going to solve this part. चलिए 9 से करेंगे तो 9 1 सा 9, then 9 5 सा 45. तो पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, क्योंकि 15 तो यहाँ पर आ गया 9 5 सा 45. 5 से इसको कट करेंगे तो हो गया 3, 3 से इसको करेंगे तो हो गया 7, एंड 5 5 सा क्या होता है 25. ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 बचा हुआ है, यहाँ पर 5. सो दिस इज 1.4 मीटर एज आंसर. सिंपल था, है ना. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. नाउ वी आर हैविंग अ सिलेंडर. देखिए सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है, एक हाइट होती है और एक बेस होता है. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो हमारे पास बेस जो होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर इज इट्स बेस एंड अ रेडियस. तो आप देखेंगे सेंटर पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक जो भी रहेगी दैट इज अ रेडियस. ओके, तो ये हमेशा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए, कोई ऐसा नहीं कि थोड़ा शेप चेंज हो जाए देन उसके यहाँ पे आप करेंगे. यहाँ पे आता है वी विल कंसिडर सिलेंडर टू बी अ राइट सर्कुलर इन दिस चैप्टर. सो हियर वी आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. ओके, और अगर आपको क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ये क्या है, ये बॉटम पार्ट निकालना है बस. दैट इज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर इज, हमें टॉप भी निकालना है बॉटम भी निकालना है और ये वाला कर्व पार्ट भी चाहिए. तो उसके लिए फॉर्म लिखा जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच. तो ये 3 फॉर्मूले जो हमें यहाँ पर यूज करने हैं. सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 18.2. सो let's pick question number 4. So we are having a right circular cylinder has a curved surface area of 1320 centimeter square and the radius of its base is this. Find the height and volume of the cylinder. Okay. तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है एंड रेडियस गिवन है. सो यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, मतलब कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड. देखिए कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 बाई आर एच होता है. तो चलिए हम उसको यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया of cylinder, that is 2 pi r h. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पे आता है हमारे पास 2 पाई इज 22/7, रेडियस वी आर हैविंग 10.5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट फर्स्ट. सो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू. तो ये हो जाएगा 1320 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22 इंटू 10.5. पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 10. ओके, 7 से करते हैं. 7 1 7, 7 3 35, 2 से हाँ सॉरी 11 से करते हैं. 11 2 11 1 2 0. ओके, देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 60, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 30. और कुछ है क्या, तो 7 7 7 5 35, 5 आना था यहाँ. 15 2 30. तो यहाँ पर 10 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 20. सो हमारे पास यहाँ पर जो हाइट आ गई दैट इज 20. ओके ओके, दिस इज 20 सेंटीमीटर कोस टू हाइट. सो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके हाइट निकाला था दैट इज 20 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर h. So pi is 22/7. Radius we are in 10.5 into 10.5 and height we are having 20. आप उसका डेसिमल डालेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. देन अगेन हियर 10
सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 1 देन 7 3 ज़ा 21। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है, चलिए दिस इज 22 इंटू 105 इंटू 3। ओके, तो चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लेते हैं 105 की 66 से, 6 5 30, 6 1 6, तो 630 0396। So we are having 6930 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ओके, सो हमने पहले यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया को यूज करा, देन वहां से हमने हाइट निकाली, देन हमने वॉल्यूम सिलेंडर फाइंड आउट करा। ओके, ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओके, here we are having question number 14. A piece of ductile metal is in the form of cylindrical whose diameter is 1 centimeter and 11 centimeter height. तो एक मेटल का पीस है, इसकी हाइट कितनी 11 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस है, नहीं डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, कुछ पीस होगा, और उसको हमने चेंज करा वायर के फॉर्म में जिसका डायमीटर कितना होगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, देन वी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन्ड। तो वायर की लेंथ निकाल लेंगे, तो देखिए जितना मेटल इसमें होगा उतना ही मेटल इसमें होगा, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। ओके, तो देखिए दोनों ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, वायर को ले लीजिए और सिलेंडर को ले लीजिए, दोनों सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। तो चलिए हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल, वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ। ओके, तो चलिए यहाँ पे वॉल्यूम डक्टाइल मेटल देखते हैं, तो यहाँ पे होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये मिलीमीटर में है, तो हमें यहाँ पर पता है कि 1 सेंटीमीटर का जो होता है 10 मिलीमीटर, तो इनको भी मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। दिस इज 10 मिलीमीटर एंड दिस इज 110 मिलीमीटर। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा पाई, तो पाई रहेगा, तो पाई को पाई में ले लेते हैं, रेडियस हो जाएगा 5 मिलीमीटर एंड हाइट इज 110 मिलीमीटर। तो यहाँ पर कर लेते हैं पाई, दैट इज R1 स्क्वायर इंटू हाइट 1। ओके, सो पाई इज पाई, R1 रेडियस 1 के, तो देखा डायमीटर गिवन है 1, उसको कर लेते हैं इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू हाइट, और इसको हम लेंथ लिख लेते हैं, ये जो हाइट होगी वही लेंथ होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे 5 5 25 इंटू 110, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, डिनोमीटर में यहाँ पर जाएगा 4 इक्वल्स टू लेंथ। सो उसको कहेंगे तो 25 4 100 इंटू 110, चल जाएगा 11000 मिलीमीटर इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ। ओके, दैट इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, और देखते हैं। सो आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।